یہ ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلف الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ۔ بلندتر صلوات پڑھے گا۔ آج کی یہ مجلس بسلسلہ شہادت امام علی نقی علیہ السلام منعقد کی گئی ہے۔ 10ویں امام کا اسم گرامی علی بیان کیا جاتا ہے اور کنیت ہے ان کی ابو الحسن۔ ولادت کے بارے میں ہے کہ 5 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی تھی 114 ہجری میں، مقام سریہ میں، کہ جسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر۔ پدر بزرگوار آپ کے امام محمد تقی ہیں اور آپ کی والدہ کا نام تھا سمانہ خاتون۔ تقریباً 60 برس کی عمر میں وہ موقع آیا کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو ظالم حکمران نے شہید کیا اور آپ پر امامت کی تمام ذمہ داریوں کو عائد ہوئے۔ آپ اپنے صفائے نفس کی بنا پر تقی، کار ہدایت کی بنا پہ ہادی، امت کو نصیحت کر کے ناصح کے لقب کہلائے تھے، امانت داری کی بنا پر امین، علم میں آپ عالم، فقیہ میں فقیہ، نفس میں طیب تو کردار میں رشید، وعدوں کے حق میں وسیع اور اعمال کے حق میں خالص، کتاب و سنت کے لحاظ سے موضع تھے، امت کے لیے آپ مرتضیٰ تھے، اور سکون کے اختیار سے آپ عسکری کہلائے، اور شہادت کے اعتبار سے آپ کو شہید کا لقب ملا۔ یہ تاریخ میں وہ 14 القاب ہے کہ جن کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ امام جواد کی شہادت جب ہوئی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے، تو اس کے بعد کیونکہ امام کے سن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹی سی عمر کی سن تھی آپ کی، 7 یا پھر 8 سال بیان کی جاتی ہے، دشمن اہل بیت کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا معتصم عباسی، اس نے ایک شخص بنامی جنیدی کو باقاعدہ وارد کیا کہ آپ علم پڑھائیں گے، تعلیم دیں گے، کیونکہ وہ خود اپنے زمانے کا ایک پہنچا ہوا ایک عالم تھا، لیکن تھا بغض اہل بیت سے بھرا ہوا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام کو، کیونکہ امام کی عمر بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ امام کو آپ تعلیم دیں، اور اس تعلیم کے بہانے دشمنی اہل بیت کی جو جراثیم ہے وہ مولا کے اندر ڈالے جائے، کیونکہ اس کی نگاہ میں مولا ایک چھوٹی سی عمر کے سن کے بچے تھے۔ بچے کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو پڑھانے آتا ہے وہ سمجھتا ہے اور وہی چیز پڑھتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اپنے معتصم نے کچھ اپنے کارندوں کو بھیجا اور پتہ کروایا جنیدی سے کہ بتاؤ تم نے اس بچے میں کیا کیا دیکھا اور تم نے اب تک کتنی بغض اہل بیت ہے جو اس کے دل میں ڈال دی ہے۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ تم اس کو بچہ کہتے ہو، یہ بچہ نہیں ہے، واللہ میں ایک حرف اس کو بتاتا ہوں، یہ مجھے علم کے دروازے کھول کے بتا دیتا ہے، یہ تمام اہل زمین سے افضل ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ تم مجھے ایک قرآن کی چھوٹی سی سورہ بتا دو، یہ مجھے پورا کا پورا قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کے بہت سے اس نے اور بھی مولا کے فضائل بتایا۔ اس کے بعد جنیدی نے شیعت کا اعلان کیا ہے کہ میں اب شیعہ ہوتا ہوں۔ یہ ہے وہ امام کے جو 8 برس کے ہیں، اور ایک ایسا بندہ کہ جو کہ مولا علی کا بغض رکھنے والا ہے، اس کو وہ شیعہ کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام کی زندگی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو امام کی زندگی میں ہمیں 6 خلفاؤں کا دور ملتا ہے، اور وہ 6 خلفاء بھی ایسے کہ جو ظالم ترین حکمران تھے۔ تو مولا کے دور میں جتنا بھی عرصہ مولا رہے ہیں، اپنی 8 سال کے بعد سے لے کر، اس میں مولا کے ایام میں ظلم بہت دیکھا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ متوکل عباسی نے کیا تھا۔ اس زمانے کا
शदीद तरीन जालिम तरीन हुक्मरान बयान किया जाता है। इन सब सख्तियों के बावजूद अगर मौला की तारीख को देखें तो मौला ने अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ा है। इमाम ने अपने शियों के साथ किस तरह से इर्तबात किया है, किस तरह से वो अपने शियों से कनेक्टेड रहा करते थे, ये मौला ने हमें सिखाया है। हमें इस दौर के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी दुश्मने अली बहुत ज्यादा है, दुश्मने शिया बहुत ज्यादा है। आप सब जानते हैं पारा चनार के हालात क्या है, किस बेस पर उनको मारा जा रहा है, इसी बेस पे उनको मारा जा रहा है कि वो शिया है। लेकिन इमाम ने अपने दौर में यही हमें लर्निंग दी है, हमें यही चीज सिखाया है कि हम अपने अमल से किस तरह से बता सकते हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं। अजीजान, आप सब माशाल्लाह पढ़ी लिखी मजमा बैठा हुआ है, आप लोगों को ये देखना है कि हम अपने अमल से ये दिखाएं कि हम किसके मानने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम कहने वाले तो अली अली हैं, लेकिन हमारा अमल कहीं से भी हमें ये ना बताए कि हम अली के मानने वाले हैं, हम इन 12 इन 14 के मानने वाले हैं। हमें इमाम के मानने वाला बनना है और वो तालीमात के जो अपने इमाम ने दिए हैं उनको अपनी जिंदगियों में राइज करना है। इमाम ने 10वें इमाम ने अपनी जिंदगी में एक पूरा नेटवर्क बनाया था। इतनी सख्ती के बावजूद, यानी रिवायत जो की जाती है, एक रावी कहता है कि मैं इमाम से रस्ते में कुछ कहना चाह रहा था तो इमाम ने मुझे रोका कि नहीं, तुम रस्ते में मुझसे बात ना करो। यानी इतनी जासूसी थी इमाम के वक्त में कि इमाम कहीं बात भी नहीं कर सकते थे, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती थी। इसीलिए इमाम उनको रोकते थे, क्योंकि इमाम अपने चाहने वालों की, क्योंकि उस जमाने में एक ऐसा माहौल था कि अगर पता चल जाता कि ये अली का चाहने वाला है तो उसकी जान, उसका माल, उसकी औलाद सब कुछ खतरे में पड़ जाता। और इमाम नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज मेरे चाहने वाले की खतरे में पड़े। लेकिन इमाम ने ये सिखाया कि कैसे काम किया जाता है, कैसे एक दूसरे से नेटवर्क कायम किया जाता है। क्या हम अपने इमाम जमाना के लिए, अपने वक्त के इमाम के लिए काम कर रहे हैं? इससे पहले कि इमाम आए, और इंशाअल्लाह कि इसी साल इमाम का ज़हूर हो जाए, हमारी दुआएं हैं, लेकिन इससे पहले कि इमाम आए, क्या हमारा एक दूसरे शियों के साथ राबित कैसे है, हमारा एक दूसरे से कनेक्शन कैसा है? अगर दुनिया में, मैं इस दुनिया में कोई हुनर रखती हूँ, एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, अगर कोई भी हुनर है आपके अंदर, तो क्या आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस हुनर को जानते हैं? क्या आपने उन लोगों से राब्ता रखा हुआ है कि आप उनसे कहें कि आप अकेले जब अपने हुनर को फैला रहे हैं, अगर वही 10 लोग मिलकर उसी हुनर के बारे में, तो हम कितना तरक्की कर सकते हैं। ये चीज इसलिए क्योंकि आने वाला वक्त मेरे इमाम का वक्त है और इमाम को हर तरह के हुनर की जरूरत होगी अपने दौर को आगे बढ़ाने के लिए। हम मिलकर इमाम के लिए ऐसा क्या काम कर सकते हैं? अकेले अकेले अगर अपना हुनर दिखाएंगे तो सब अकेले अकेले रहेंगे, मुतफर्रिक होंगे, लेकिन वही चीज जब जमा हो जाती है तो उसमें ताकत आ जाती है। इमाम ने अपने दौर में ये काम क्यों किया था? क्योंकि 10वें इमाम को ये बात मालूम थी, जो सिस्टमिक उन्होंने पूरे शियों को मुत्तहिद किया, जिस तरीके से उन्होंने छुप के काम किया, क्योंकि उस जमाने में जैसे मैं बता रही हूँ कि शिया दिखने सामने में दिखने में नहीं थे, क्योंकि शियों पर जैसे ही पता चलता था वो शख्स मार देता था उन लोगों को। लेकिन फिर भी शियों ने इसलिए इतने काम किए, इसलिए इमाम ने उनको डेवलप किया, क्योंकि मौला को मालूम था कि मेरे बाद 11वें इमाम है और उनके बाद फिर गैबत का जमाना है। यानी एक ऐसा वक्त है कि जो लोग हैं, जो कि शिया हैं, वो इमामों के दरमियान में अब नहीं रहेंगे। इसके लिए उनको बहुत मुत्तहिद होना चाहिए। 10वें इमाम ने इस पूरे तरीके से अपने जमाने के लॉयर्स को, जिन्हें फकीह कहा जाता है, उनका एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया था जो कि 7वें इमाम से बनना शुरू हो चुका था। 7वें इमाम, फिर 8वें इमाम, लेकिन 10वें इमाम तक, जहां पर पूरी दुनिया में शियत फैली हुई थी, जिस जिस जगह पे फैली हुई थी, आप तारीख का मुतालिया करें, आपको पता चलेगा कि जहां जहां तक शियत फैली हुई थी, इमाम ने उन सब जगहों पे हमारी शियत को ताकतवर किया था। जबकि इतनी सख्ती मौजूद थी उस हुकूमत में, जिस तरह से सख्ती की जाती थी, शिया की उस जमाने की जो एक सिफत थी, सिर्फ एक सिफत बताऊंगी, वो ये थी कि वो राजदान होता है। यानी शिया वो होता है कि जो राजों को रखता है। शिया की छुपा के रखने वाली सिफत होनी चाहिए, ना ये कि हर चीज जाहिर कर दी जाए। आजकल आपको पता है टिकटॉक्स के जमाने हैं, स्नैपचैट से हमारी बच्चियां इन चीजों में, खुराफात में पढ़कर अपनी हर ऐसी ऐसी चीजों को सामने जाहिर करती है जो वो जानती भी नहीं है कि वो घर से अपनी कैसी कैसी चीजें सामने जाहिर कर रही है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीजों को हमें बहुत छुपा के रखना चाहिए। इन सख्तियों के दौर में हमारे मौला ने ऐसे ऐसे कारनामे अपने वक्त में दिखाए,
اور जिस तरह से तबलीग की है उसके लिए मैं आप तमाम से कहूँगी कि आप खुद मुताला कीजिए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह इन सख्तियों में जो मुतवक्किल अब्बासी जिसका मुसलसल जिक्र कर रही हूँ, उसको जब भी पता चलता था जासूस उसने फैलाए हुए थे, यहाँ तक कि इमाम के घर में तक जासूस थे, उसको जब ये इत्तला मिली कि इमाम के घर में असलहा जमा हो रहा है, क्योंकि इमाम ज़ाहिर बात है एक्टिविटीज करते रहते थे, उनको तबलीग करनी थी, चाहे बज़ाहिर इमामत मौला को नहीं मिली, लेकिन इमाम बरहक थे, इसलिए इमाम के पास उसने छापा मरवाया, अपने लोगों को पहुंचाया इमाम के घर पे और पूरी छानबीन की गई, लेकिन मौला के घर में असलहा नहीं मिला। ताकि असलहा था लेकिन ये एजाज इमामत, और उस वक्त मेरे इमाम क्या कर रहे थे, मौला क़िबले की तरफ रुख करके कुरान पाक पढ़ रहे थे। उस हालत में उसने मौला से कहा कि मेरे दरबार आए, और जब मौला को उसने दरबार बुलाया है तो रिवायात में बयान किया जाता है कि वो शख्स शराब पी रहा था, और उसने अपने इमाम को अपने साथ वाली नशिस्त पे बिठाया और मौला को शराब की ऑफर की है। उसने कहा मौला आप शराब पीजिए। मौला ने उस वक्त कहा कि हमारा खून और हमारा गोश्त इस शराब से दूर है। फैज़ान मोहतरम मैं काफी सुनती हूँ, सुनने में आता है कि ये शिया शराब पी रहा था। आप अपने घर में जाके मर्दों को बताएं कि वो मौला कि जो कह रहा है कि मेरा खून और मेरा गोश्त शराब से दूर रहता है, तो उसका चाहने वाला, उसका मानने वाला क्यों कर ऐसी नजिस चीज के पास आए। जब मेरा मौला, हमारे इमाम है 14 मासूमीन में से किसी का कौल है कि मेरी शिफाअत उस शख्स को नसीब ही नहीं है जो नमाज को सुबह करार देता है, यानी पढ़ना दूर की बात, मतलब ना पढ़ना तो दूर की बात है, जो उसको हल्का समझता है, जो उसको किसी और चीज के ऊपर फौकियत दे रहा है, खाने के ऊपर फौकियत दे रहा है, अपनी दूसरी दुनियावी एक्टिविटीज पे फौकियत दे रहा है। इमाम कहता है, इमाम कह रहे हैं कि उस शख्स को मेरी शिफाअत नसीब नहीं होगी। तो इज़ान मोहतरम शिया ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने मौला की इस बात पे अमल ना करे, वो कभी भी नमाज को सुबह नहीं करेगा। तो अजीज़ान मोहतरम इसी तरह उस वक्त उस शख्स ने इमाम से कहा कि शराब तो नहीं पी रहे, कम अज कम कुछ शेर और शायरी ही सुनाइए, क्योंकि वो मस्त था उस वक्त। तो इमाम ने कुछ शेर पढ़े जिनका खुलासा मैं बताती हूँ कि मौला ने कहा कि वो कहाँ गए जो तेरे बड़े बड़े तख्तो ताज में जिंदगी गुजारते थे, आज वो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़ों की खुराक बनी हुई है। और इस तरह मौला ने कुछ और भी दुनिया की हकीकतें बताई कि बयान किया जाता है जब मौला ने ये दुनिया और आखिरत का चेहरा दिखाया है उसको, तो वो वहां पर रोने लगा। यहाँ तक कि दरबार में और भी जो लोग नशे थे, शराबी बैठे हुए थे, वो सब उस वक्त रोने लगे, और उसने मिलाकर उसके ऊपर से वो नशा उतरा और उसने इमाम को बहुत तकरीम के साथ रुखसत किया है। हत्ता कि वो हमेशा मौला के दरबार इसलिए बुलाता था कि वो मौला की मजाक उड़ा सके, ताकि लोग उनके ऊपर हंसे। हर दफा उसने कोशिश की है, क्योंकि इमाम हस्ती ऐसी थी कि लोग इमाम के बाकायदा एहतराम करते थे, उनके एहतराम में अक्सर खड़े हो जाया करते थे। तो उसने जब ये देखा तो उसने अपने दरबारियों को बोला कि मैं जब भी इनको बुलाया करो तो तुम लोगों में से कोई भी खड़ा नहीं होगा, बाकायदा मना किया। हत्ता कि खड़ा होने तो दूर की बात, जो पर्दे लगे हुए होते हैं, क्योंकि कसर था, एक महल था, महल में जगह जगह दरवाजे होते हैं, तो उनके जो पर्दे हैं उनको भी कोई नहीं उठाएगा मौला के लिए, वो खुद उठाएंगे, और देखना कैसे तुम सब उनके ऊपर हंसोगे। लोगों ने बात मानी और मौला को बुलाया गया है। अजीजान रिवायात में बयान है कि जब मौला उस वक्त आए हैं तो एक ऐसी हवा का झोंका आया है कि वो पर्दा खुद ब खुद उठ गया और मौला अंदर तशरीफ ले आए। और इसी तरह जब मेरे मौला वापस पलटे हैं, जब जाने के लिए उठे हैं, उस वक्त भी एक ऐसी हवा का झोंका आया कि वो हवा से पर्दा उठा है और मौला बगैर उस पर्दे को हटाए निकल गए वहां से। उस वक्त उस शख्स ने कहा कि भाई पर्दा उठा दिया करो, क्योंकि ये हवा के उठने से जो लोग बातें बनाएंगे, वो ये समझता ही नहीं था कि अहले बैत वो हस्ती हैं जो खुदा के नुमाइंदे हैं। अहले बैत वो हस्ती है कि खुदा ने हर चीज इनके इख्तियार में होती है। हवा क्या चीज है जो पर्दे को उठाएगी, हर चीज मौला के इख्तियार में है। ये है वो मेरे मौला की शान। बज़ाने मोहतरम मुतवक्किल इतना जालिम तरीन शख्स था कि उसने अपने भाई को कहा कि बस जहर दे दिया जाए ताकि मौला की शहादत हो। बज़ाने मोहतरम जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है तो उस वक्त बयान किया जाता है कि सिर्फ 7 और 8 बरस के थे, हत्ता कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की वालदा भी उस वक्त जिंदा थी। वो मदीने में
इमाम अली नकी के साथ थी। इमाम अली नकी मदीने में थे और उनके वालिद मोहतरम काज़मैन में थे। वो अपनी दादी से कहते हैं, दादी आज मेरे बाबा की शहादत का दिन है। अब माँ का दिल है, जिसको नहीं मालूम कि उनका बेटा शहीद हो चुका है। जनाब सबीका खातून रोने लगती है, कहती है बेटा ऐसा ना कहो, मेरा 25 साल का जवान बेटा है। कहता है दादी अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता कायम किया है जो हर वक्त के इमाम के साथ रहता है। वो फरिश्ता अब मेरे पास आ चुका है, इसका मतलब है मेरे बाबा की शहादत हो चुकी है। अजीजान आप समझ सकते हैं किसी भी खातून को अगर ये बताया जाए कि उसकी औलाद मर चुकी है तो उसके दिल में क्या हालात होते हैं, वो कितना तड़पती है। बस अब उसकी जमा पूंजी वो 2 पोते और 1 पोती थे, उन्हीं को लिपट के रोई है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा मारा गया। बचपने से यतीमी देखी है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने। अजीजों यतीमी क्या होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जब प्यार करता हुआ देखता है उसका दिल टूट जाता है। रिवायात के अल्फाज है कि इमाम हसन मुश्तबा की शहादत के बाद इमाम हुसैन अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं करते थे जितना जनाब कासिम को करते थे। लोगों ने पूछा तो मौला कहते हैं कि जब भी मैं कासिम को देखता हूँ मुझे एहसास होता है कि मेरा भतीजा कभी यतीमी का एहसास न करे। आप सब मसाइल सुनते हैं ना कि जनाब सकीना को जब तमाचा लगा था, जनाब सकीना ने कहा था अब्बास चचा अब्बास देखिए मेरे कानों से खून बह रहा है। यतीम ऐसे होते हैं अजीजान, अब जरा तसव्वुर करें 8 साल का बच्चा वो अपने बाबा से दूर था जब उसके बाबा शहीद हुए हैं। क्या सोचा होगा मेरे अली नकी इमाम ने। बज़ाने मोहतरम पूरी जिंदगी गुजर गई, आखिर में मौला को भी जहर दिया गया है। रिवायात में ये कि 4 ऐसे जहर है जो बहुत सख्त तरीन दिए गए हैं। पहला जहर बयान किया जाता है इमाम हसन मुश्तबा का था। आखिर जहर में ऐसा क्या था? रिवायात कहते हैं कि इमाम को ऐसा जहर दिया गया था कि इमाम हसन के कलेजे मुंह से निकल आए थे। दूसरा जहर इमाम रजा अलैहिस्सलाम को सख्त तरीन दिया है। जब मौला को जहर दिया ना मौला रजा को, तो बयान किया जाता है मौला ने अपने चेहरे पर रुमाल डाल दिया। वो शख्स पूछता है कि आप अपने चेहरे पर रुमाल क्यों डालते हैं? मौला कहते हैं मुझे बार बार खून पीने आ रही है, मेरा पूरा कलेजा पानी हो चुका है। तीसरा जहर बयान किया जाता है अली नकी को दिया था। आप अपने बेटे हसन अस्करी के करीब मौजूद थे, कहा बेटा मुझे सहारा दो, मेरे अजदाद आए, अली मुर्तजा आए, रसूल खुदा आए, मेरी दादी ज़हरा आई है। और एक आखिरी जहर हसन अस्करी को दिया था। अजीजान लहजान कितने सख्त होंगे। रिवायत में है कि इमाम हसन ने खुद अपने बाबा को गुस्लो कफन दिया, अपने घर में शियों को जमा किया कि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। बाहर लोग मौजूद हैं लेकिन नमाज कहते हैं कि मुझे बाहर नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए इमाम ने अपने बाबा की नमाज पढ़ाई। बस मौला मैं कहूँगी आपने जब नमाज पढ़ाई थी आपके गले में तोप तो नहीं था, मौला आपके हाथों में बेड़ियां तो नहीं थी, मौला आपकी मुखियों के सरों पे चादरें मौजूद थी, मौला आपको कोई ताजियाने लगाने वाला नहीं था, मौला आपके घर के यतीमों को कोई तमाचा मारने वाला नहीं था। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबन यन्क़लिबून खुदाया बिहक़्क़ि मुहम्मद बिहक़्क़ि अली।